चल आ जाए भाई. ACRYL and CRESCO Limited. You should assume that today's date is 1st of December 2025. ACRYL and CRESCO are two unrelated companies. You have been asked to advise them on. ठीक है, कुछ दो कंडीशन है उसके लिए उनको एडवाइस करना है. State the corporation tax consequences arising on the commencement of ACRYL's winding up on 1st of January 2026. ACRYL is a UK resident trading company, has always been and always has an accounting reference date of 30th of June, has substantial distributable profits. 70% of the company's share capital is owned by Mambo Limited. The remaining 30% of the share capital is owned by Mambo Limited. एक minute, what? 70% of the share capital is owned by Mambo Limited. The remaining 30% of the share capital is owned by my Mambo Limited's managing director Alan. ठीक है ठीक है ठीक है. Mambo Limited and Alan both subscribed for their shares at par value on 1st of March 2019. Mambo Limited is a UK resident trading company. ठीक है. Alan will be an additional rate taxpayer in the tax year 25-26. He will receive a salary from ACRYL Limited. This will be his only income in the tax year 25-26, other than the distribution of ACRYL Limited in uh, December 2025 March 2026. ठीक है. Will be eligible for business asset disposal relief on the disposal of his shares in ACRYL Limited. ठीक है, तो उसको BADR तो मिल रहा है. Liquidation of ACRYL. Winding up will commence on 1st of January 2026 with the appointment of a liquidator. It is anticipated that the winding up will be completed on 31st of March 2026 when the companies will cease trading. Alternative timing and distribution of नहीं ये तो नहीं है but रुक जाए. ACRYL Limited is prepared to distribute the available profits to its shareholders on 31st of December 2024. Alternatively, ACRYL will delay the distribution until the completion of the winding up of the company on 31st of March 2026. अच्छा, तो इसके ऊपर से ही बताना पड़ेगा ना, मेरे को लग रहा है. क्योंकि वो लोग ने कॉर्पोरेशन टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है. कॉर्पोरेशन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो जो अपन बोलेंगे वो इनकम टैक्स और इसके लिए हो गया. वही. कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या कॉन्सिक्वेंस है अगर तेरा लिक्विडेशन में कंपनी जा रहा है तो उसके बाद तो कॉर्पोरेशन. इनका अकाउंटिंग रेफरेंस डेट हमेशा 30th ऑफ जून का हुआ करता था. अभी ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये लोग लिक्विडेटर. वाइंड अप 1st ऑफ जनवरी 26 को कर रहे हैं, तो ये लोग को जुलाई से लेके 31st ऑफ दिसंबर तक एक अकाउंटिंग पीरियड रखना होगा. एंड सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड विल बी फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 26 टू जैन टू 31st मार्च. ऑफ मार्च 26. दिस इज द बराबर. कॉर्पोरेशन टैक्स इम्प्लीकेशन. अच्छा, तो उसके हिसाब से तेरे अपर लोअर लिमिट भी प्रोरेट होंगे. हम्म. वो सब बताना पड़ेगा. ओके ओके. ठीक है, ये तो दो मक का ही था, इसको जाने दो. इसके ऊपर ही आते हैं. Explain the tax implications of both Mambo Limited and Allen if the distribution to be made by ACRYL Limited occurs either on 31st of December 2025 or alternatively on 31st of March 2026, and conclude as to which date would be preferable. ओके, तो अपने को ये पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना. एक तो उनको 31 दिसंबर को अगर हो रहे हैं, दैट इज बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, वो सारे के सारे एज डिविडेंड्स माने जाएंगे और वो उनके इनकम टैक्स कैलकुलेशंस में आएंगे. एंड लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद जो दे रहे हैं उसको अपन कैपिटल डिस्पोजल बोलेंगे. तो उसके ऊपर जो भी चार्जेबल गेन होगा वो भरना पड़ेगा. बट अपने को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा क्योंकि अपन लोग ने नहीं, कंक्लूजन में कौन कैलकुलेट सा कुछ नहीं करना है. बेनिफिशियल है पूछा है. नंबर्स ही नहीं है तेरे पास, नहीं, क्या तू क्या कैलकुलेट करेगा. वो दिया ही नहीं है. और तो बेसिकली हमको ये दिया हुआ है कि वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है. तो अगर जैसा तू बोल हाँ. रहा है कि
31 दिसंबर 25, नहीं कौन सा है वो डेट? तो अब December 24 दिया है, मुझे लगता है ये एक्चुअली 25 है, ये उनका मतलब फाइव है, मिसप्रिंट हुआ है। 5 है, गलती हो ये गया। 25 है। अगर ये इस डेट को करते हैं तो बेसिकली एलन को टैक्स भरना पड़ेगा 39.35% पे, because he's a ओके। higher rate taxpayer and therefore it would not be beneficial for him that the profits are distributed before ये. However, if however so is not the case for ACRYL Limited. नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैम्बो लिमिटेड, मैम्बो ओके, लिमिटेड मैम्बो। हमको ओन करता है। मैम्बो लिमिटेड एज डिविडेंड्स which have been given to companies are exempt from corporation tax एग्जाम। purposes and therefore no tax will arise for Mambo Limited. But बराबर। when we look at the other alternative where in which ACRA will delay the distribution till 31st of March 26, in such a scenario, the disposals will be treated as capital gains. हम्म। बैडर अवेलेबल है इसके लिए। And BADR would be एलन को। available, so therefore tax would be paid at the rate of 10%. यस। For as एंड per Mambo Limited, क्या होगा? मैम्बो लिमिटेड को भी कैपिटल गेन्स आएगा, मतलब वो Subs- कॉर्पोरेशन रेट पे ही होगा। Substantial shareholding exemption because she was owning 10% more for the previous 6 years. राइट। तो वो भी For the एग्जेम्प्ट हो previous जाएगा। 6 years. ओपन लाइन पर डाल देंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इसके तो दोनों की चीजें एग्जेम्प्ट हो रही है कंपनी के लिए, वैसे एलियन के लिए नहीं हो रही है। डोंट वरी, मैंने ये सब पहली बार किया तो मुझे भी कुछ क्लिक नहीं हुआ था ये सब। ये मैं यस सेकंड टाइम आसमान। किया तो मेरे को आता कि हाँ हाँ, वो जाते थे भाई। आप लोग तो ऐसे ऐसे ब्लिप में जाते थे। अच्छा हुआ वो अब्दुल ने 56 बोला, मैं फिर उसके जस्ट एक आंसर नीचे ही था। एक्रेल लिमिटेड, implications of भाई मेरा comments. पूरा कंफ्यूजन ही चेंज हो जाता था फिर, क्योंकि ये सेवेंटी हाँ परसेंट होल्ड कर रहा है मामबा। हाँ। तो फिर मैं बोलता था कंफ्यूजन, मतलब इससे ऑल्टरनेटिव वन से ही जाओ, क्योंकि फिर भले एलन को थोड़ा सा टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है, बट मामबा को तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हम्म हम्म ठीक है बता भाई। The commencement of winding up will lead to end of the accounting period on 31st of December 2025 and the commencement of new accounting period on 1st of January 2026. ACRYL Limited will remain liable to corporation tax until the winding up is completed. Accordingly, a corporation tax computation is required for each of the two accounting periods for the first from 1st of July 25 to 31st of December 25 and the second from 1st of January 26 to 31st of March 26. Distribution. In this case, the distribution will be made prior to commencement of winding up and therefore will be treated as an income distribution, that is normal dividend for the tax purposes for both the shareholders. Mambo Limited will not be subject to corporation tax on dividend as companies are not subject to corporation tax on dividends. Allen will be subject to income tax on dividends. The first 500 will be subject to 0% tax, income tax, as it is covered by the dividend nil rate band. The excess above will be taxed at 39.35. Allen is an additional rate taxpayer. Distribution on 31st of March 26. As the distribution will be made when the company is in liquidation, it will be treated as a capital receipt on disposal of the shares in ACRA Limited for both shareholders. Mambo Limited should not be subject to corporation tax on the disposal, as it should be qualifying for the disposal out of the substantial shareholding. Mambo Limited will have held at least the 10% of the shares in ACRYL Limited for more than 12 continuous months out of the 6 years preceding the disposal, and ACRYL Limited is a trading company. Allen नहीं, वो limited नहीं है. Allen will be subject to capital gains tax on the gains arising as Allen is eligible for BADR on the disposal of ACRYL Limited shares. Capital gains tax will be charged at 10% on capital on the tax payable. Conclusion: Mambo Limited will not be subject to corporation tax in either of the alternatives, but Allen would probably prefer 31st of March 26 as he is likely to suffer a low rate of tax if the distribution is made on this date. नाइस, तो फिर ऑल्टरनेटिव टू के साथ जाना चाहिए। अब जब यहाँ पे 9 मार्क्स मिले हैं तो नीचे के देखना सारे मार्क्स जाएंगे अभी धीरे धीरे धड़ 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 करके। तो वहां पे दो मिले। वहां पे दो नहीं नहीं नहीं, बट लेकिन तूने जो पहला लिखा है उसका कुछ तो मार्क्स देंगे भाई, ऐसा नहीं होता कि जीरो ही दे हाँ देते। ऑफकोर्स ऑफकोर्स।
मैं एकदम सेट वर्स्ट आउट। के सिनेरियो बोल रहा हूँ। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो कि एकदम मतलब वो पेपर चेकिंग के लिए सबसे खराब इंसान के पास हम्म चला गया तो हम्म हम्म B1 set out together with supporting calculations how Cresco Limited will claim the relief for trading losses incurred and identify the amount of trading losses which will remain unrelieved after all available losses loss reliefs will be claimed. Advise Cresco Limited of the value added tax implications of the cessation of trade. अच्छा, cessation of trade का तो बता ही सकते हैं ना, वैट का तो इजी है। ये जो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं पर। चलो together with voting explanations how CRESCO Limited will claim relief for trading losses incurred and identify the amount of trading losses which will remain unrelieved after all available losses। ठीक है। एक मिनट, उससे समझा तो मुझे भी बताना। 85% का लॉजिक क्या था? किसको पूछा है? अब्दुल ने यही यश को पूछा वो वाला लॉजिक, एंड अभी यश देखते पूछता हम्म। आंसर देता है जब। क्रेस्को लिमिटेड, एक सेकेंड ना। Commenced trading on 1st of July 21, is registered for the purposes of VAT, has made significant trading loss in recent months such that the company will need to cease trading on 31st of December 2025. Okay. Cresco Limited will always claim release for trading losses as soon as possible. उन्होंने बोला as soon as possible हमको रिलीव करना है वो लॉस को। कैरी फॉरवर्ड वैसे भी नहीं होता था, एज सुन एज पॉसिबल क्या बोलते हैं भाई? अरे पहले अपन वैट इम्प्लीकेशन फॉर सेसेशन बोल देते हैं ना, वो तो इजी रहेगा ना, तो बोलता हूँ। वैट इम्प्लीकेशन फॉर सेसेशन, बट ये हो रहा है क्या वापस? मतलब कोई दूसरे इसमें? नहीं, सीज हो रहा है खाली। तो डी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम्म। बट उसका भी लिमिट है ना 88,000 का। 88,000 का लिमिट है। जिस डेट पे तू डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, अगर वो अप्लाई करेगा। अप्रूव हो गया तो तेरे को उसी दिन से डी रजिस्टर माना जाएगा। डी रजिस्टर माना जाएगा, हाँ, बट इसमें तो इसके प्रॉफिट से नहीं है उतने। अरे प्रॉफिट से, ओ हम्म। सॉरी, जरा सप्लाईज देखते हैं। सप्लाई सप्लाई सप्लाईज देखते दिए हैं नहीं है अपने को। अभी। बट इसमें इसमें क्या केस है? इसमें वो लोग ने बोला है कि सिग्निफिकेंट लॉसेस बना रही थी करके सीज हो रहा है, तो अपन मेरे को लगता है वही रीजन डाल देंगे कि 31 दिसंबर से वैसे भी सीज हो रहा है, तो हम्म। डी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने को। या और आइदर उसके पहले अगर तुम लोग के टैक्सेबल सप्लाईज 88,000 के नीचे चले गए होंगे या 88,000 पे चले गए तो वो डेट पे सीज कर दो। बराबर ऐसा। बराबर। अब मैं क्या बोलता हूँ, शी ठीक इज है। ऑलवेज नोन फॉर क्लेमिंग रिलीफ फॉर ट्रेडिंग लॉसेज एज सून एज पॉसिबल बोला हुआ है। हम्म। तो अभी देख, मेरे को तूने। सून एज पॉसिबल का इतना ही कंसेप्ट पता है कि तू कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एज सून एज पॉसिबल में देखो कैश फ्लो बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए rather देन टैक्स सेविंग बराबर बेनिफिट। बराबर तो तेरा करंट ईयर एंड कैरी बैक वाला क्लेम्स ज्यादा मैटर करते हैं। बराबर। और इसमें तो वैसे भी सीज हो रहा है वो, तो टर्मिनल लॉस एक ही रिलीफ है अपने पास। तुम पहला तो ये 5,000 के साथ ये वाला पांच अकाउंटिंग हजार नॉक पीरियड ऑफ हो है वो। जाएगा एज सुन एज पॉसिबल मतलब। हाँ। अब इसके मैं क्या इसके बोल ये रहा क्या हूँ, है? अकाउंटिंग, अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड बराबर है, 1 मई तक है, ठीक है, 31। क्या बोल रहा हूँ, ये 5,000 ये 5,000 चला गया। हम्म। अभी तू ट्रेडिंग लॉसेस है, तू प्रीवियस ईयर में जा सकता है। प्रीवियस बराबर। ईयर, ठीक है, तू प्रीवियस ईयर में जा सकता है ट्रेडिंग लॉस के साथ करने सेट ऑफ की टोटल इनकम के साथ करने सेट ऑफ। लगता है टोटल टोटल इनकम के इनकम। साथ। तो फिर ये टोटल इनकम, फोर्टीन क्योंकि वो ट्रेडिंग थाउजेंड लॉस होते रहे। को तू एक साल पीछे लेके गया होगा, हम्म। तो ये नॉक ऑफ हो गया होगा। तूने ऊपर कुछ भी नहीं किया ना, और कुछ तो ऐसे वैसे कुछ बेचा नहीं है, नहीं बराबर है। नहीं, कुछ तो भी अब नहीं बचता बोला। है खाली ये 40,000, जो कितने पीरियड के लिए है? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीनों का 7 महीने। है ये।
और हाँ। इसका 24,000 में से कितना बच गया होगा? 7 मंथ्स, 12 मंथ्स, कितना बच गया होगा इसका? 13,000 बच गया होगा। और इसका 40K, बेसिकली ये 13K would have been carried forward, and now this total loss would have been 53K. 53 के बराबर, परफेक्ट। Now the only available profits that you have actually are May 23। तो ये 53K यस। को तू तेरे May 23 के साथ सेट ऑफ करेगा, तो तेरे 33K के प्रॉफिट्स ओनली वेस्ट हो 23 जाएंगे। बचता है। 23 ना। 53 - 20। 3, 20, हाँ सॉरी 20, हाँ तो 20। 53 माइनस हाँ। तो 20 तो 33K। थर- हाँ बराबर, 33 के। थर्टी थर्टी थ्री थ्री के के प्रॉफिट्स लॉस वेस्ट से हो जाएंगे। वेस्ट हो जाएंगे। कुछ 7/12 वगैरह नहीं करना है ना ये प्रॉफिट्स को वगैरह? नहीं नहीं नहीं, अगर मतलब तेरे को जो जो ईयर में तेरे को लॉस हुआ है, अगर वो शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड रहेगा तो चलता है, बट तू जो लॉसेस क्लेम करने जा रहा है वो शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड रहा तो उसको फिर तेरे को प्रोरेट करना पड़ता है। लॉस का ईयर चलता है कैसा भी। तो फिर ये वाले पीरियड को अपने को प्रोरेट नहीं करना चाहिए May 23 को? कैसे? तो 12 महीने के पूरे प्रॉफिट्स है ना वो, जो टैक्स ईयर के हिसाब से बोल रहा है। नहीं, सुन मैं पता है क्या बोल नहीं रहा हूँ, ना। कि ये तेरा 7 महीने का है, ये तेरा 12 महीने का है, और ये तेरा 12 महीने का है। ये और ये तो चल वो नॉक ऑफ हो चुके हैं। ये 12 महीने में मैं अभी खाली 13K बाकी है, बराबर है? तो अभी तू तेरे हम्म। 20K के सामने 13K को नॉक ऑफ करेगा, तो अब बचे 7K। अभी ये हम्म। 7K और इसका तू 7/12 करेगा क्या? मैं तेरे को वो पूछ रहा हूँ, इसका 7/12 होगा क्या? नहीं 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 नहीं, आई डोंट नहीं? थिंक सो। ठीक है, फिर आ जा, फिर आंसर चेक करते हैं। 33K प्रॉफिट्स वेस्ट ना, सॉरी वो लॉसेस वेस्ट ना फिर। लॉसेस वेस्ट, हाँ ऐसा ही लग रहा है। 11K, 20K, हाँ नाइस नाइस, सब ये हो रहे हैं, नॉक ऑफ हो रहे हैं। ये देख, टोटल अनरिलीव्ड लॉसेस परफेक्ट 33K। नाइस, तो तूने सही बताया। मैं फालतू में ज्यादा ज्यादा सोच रहा था। फिर 20K, फिर 5 मंथ पीरियड 20। ओ आई ये थिंक क्या और है? कुछ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 11K गया, ये देख 13K ऑफ द लॉसेस रिमेन अनरिलीव, हाउएवर 10,000 ऑफ दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्मिनल लॉस। इसमें से खाली बराबर ना। 10 के ही वो टर्मिनल लॉस के ओ बन रहे हैं 10 की पार्ट। होती है। ओके एज ओके। क्रेस्को लिमिटेड has ceased trading on लॉस ऑफ द टर्मिनल लॉस, ठीक है। ओ राइट, अरे तू टर्मिनल लॉस रिलीफ में क्या कर, मतलब अभी तो अपन बच गए, वो तुक्के से बच गए। बेसिकली तू क्या करता है, तू टर्मिनल लॉस रिलीफ में पिछले 12 महीनों के लॉसेस ले लेता है ना। ओ राइट। तेरे सात ओ महीने के अच्छा, तो इसका 40,000 है। समझा। तो इसका तेरे इसमें को से फाइव टू बाय तीन ट्वेल्व महीने के करना था। लेगा। हाँ, 5 महीने के 5 महीने लेगा, के लेगा। 5 महीने के हाँ। लेगा। तो अभी वो 10 के आ रहे हैं, और इस तो तेरे पास थे टोटल, मतलब वो 13 के। तो 10 के और ये वाले 7/12, विच इज कितना, कितना होता है? नहीं, ये पूरा सेवन बाय 7 महीने के ट्वेल्व लिए पूरा ही तो है। हाँ सॉरी, ये पूरे, हाँ 7/12 सॉरी भी सॉरी होता सॉरी सॉरी है। सॉरी गाइस, ये पूरा 40K ही है। 40K और ये 10K तो होता है हाँ। 50K। तो वो 50K हम लोग लेके जाते हैं, मतलब वो सेट ऑफ करने का, राइट राइट। यस। इसलिए वहां पे वो अपना फिफ्टी अपना के आया राइट हुआ है। कैसे है बट वो वो फिर अपना अनरिलीव्ड अच्छा बोला है वो उसका लोग ने। ओवरऑल। नहीं नहीं, तो तेरा हाँ तो अपन टर्मिनल भी वही लॉस बोल रहे थे। वेस्ट 30K। हाँ तो तेरा, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि तो तेरा मतलब वो टर्मिनल लॉस 30K का वेस्ट हुआ है। तेरा यहाँ पे लॉस 3K का वेस्ट हुआ है, तेरा टोटल लॉस 33K वेस्ट हुआ है। 33 उन्होंने का उसका ही हुआ है, बाइफरकेशन ओके, दिया मतलब हुआ है। अपना बाइफरकेशन हटता बाइफरकेशन, था अपना, अब अपन बराबर। वो बच गए हैं, बाइफरकेशन तो ठीक है भाई। ये अपन एक्सप्लेनेशन तो अपन नहीं दे पाते इतना 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 मतलब वो ब्यूटीफुली हाँ जितना ये लोग ने दिया है। बट तेरे को ये सीन समझाएगा कि अगर ये तेरा गलती से प्रॉफिट्स बनता ना, प्रॉफिट्स, तो फिर बम्बू थे। तो फिर तेरे को यहाँ पे कम करने पड़ते अपने लॉस, भाई साहब, क्रेजी। नाइस सम। क्रेजी क्रेजी। वैट।
CRESCO Limited must notify HMRC of the cessation of the business within 30 days of ceasing to make taxable supplies. Output tax must be accounted for on any business assets it still holds on the date of cessation of trade, in respect of which input tax was previously recovered. However, there is no need to account for output tax if it is less than 1000. हाँ, ये एक है कि तुझे जो भी तेरा आज के टाइम पे आउटपुट टैक्स है तो तेरे को सारा का सारा चार्ज कर देना पड़ेगा, तेरे को सारा का सारा अकाउंट करना पड़ेगा आज ही के दिन सब कुछ। लेकिन अगर वो 1000 के से नीचे है तो जाने दे, मतलब 1 के से नीचे है तो वो जाने दे। हाँ। ऐसा। तो चल क्या। अरे चल, नई वापस मीटिंग पे आ जा। प्रेजेंट कर। वापस प्रेजेंट करने के। अच्छा, स्क्रीनशॉट, हाँ हाँ, ले 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 ले।